ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। Hello and welcome to the highlights of Day 2 at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. After a spectacular opening ceremony yesterday, the action and focus shifted back to competitions at the Khelo India University Games venues in Bengaluru. Schools and universities are the powerhouses of sports and games. The Government of India has given a huge boost to the efforts to enhance India's stature in the world of sports through events like the Khelo India Games. The Khelo India University Games has brought together spirited young competitors from 180 odd universities to Bengaluru. The Jain Global University campus in Kanakpura Road is quite the venue for such a major multidisciplinary event with excellent venues for indoor and outdoor games. We now have world-class competitors in India who can give a tough fight to opponents thanks to the resources and facilities being put in place by the Government of India and courtesy continuous efforts that are on to identify and mentor fresh young talent from every part of the country. All India Radio has always brought you the best of sporting action from around the world. So now let's take a look at what's happened in Bengaluru today. 11 events were scheduled across various venues. 10 gold medals were at stake in swimming and local lad and Olympian Srihari Nadaraj displayed his skills at the pool at the Jain University swimming complex this evening. Anupam Pathak was at the venue and let's hear more from him. स्विमिंग पूल में आज से तैराकी की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। क्योंकि 4 दिन ही स्पर्धाएं चलनी हैं, इसलिए पहले दिन से ही पदकों की छपाक शुरू हो गई। आज 10 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। पानी में सबसे बड़ी स्टार रेस थी आज की अंतिम रेस 50 मीटर फ्री स्टाइल, जिसमें पिछले कॉमनवेल्थ खेल, एशियन खेल और टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके और मेजबान जैन विश्वविद्यालय के छात्र श्रीहरि नटराज तरणताल में उतरे। जाहिर है उनका मुकाबला तो बस उन्हीं से था। बहुत आसानी के साथ उन्होंने स्पर्धा जीती। और वो कैसे बने इन खेलों के फास्टेस्ट स्विमर, आइए जानते हैं मिलिंद वागले के साथ। And here we are, perhaps lane number 6. Lane number 7 seems to be doing well, Suchit Patil. Lane number 6. Lane number 6. It is, oh wow. What are we looking at? Are we looking at an upset? No, there is no upset. It is Sri Hari Natarajan, 23.23. And that is a games record. इसी विश्वविद्यालय के छात्र और भारत की आगामी उम्मीद यहाँ पर क्या कहते हैं अपनी इस स्विम के बारे में। This is a training meet for me. So after this event, I'm back to the pool, and instead of going back to the room, I have to finish a workout because we have the Commonwealth Games and Asian Games coming up this year. So the main focus is to get in as much training as possible. Yeah, pretty decent time, considering that I just finished the tournament and I've just come back. It's only 0.22 of my best time, so because I've seen Veer Dhawan do some crazy sets, so it's just time for me to do some crazy sets as well. आज 50 मीटर फ्री स्टाइल के साथ साथ महिला और पुरुष वर्ग में 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 400 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर मेडले पुरुष और 4 गुणे 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले महिला के पदकों का निर्णय हुआ। 400 मीटर फ्री स्टाइल में 4 मिनट 17.67 सेकंड के साथ स्वर्णिम छपाक लगाई सुप्रसिद्ध सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे के शुभम धायगुडे ने। तैयारी बहुत अच्छी की, कोच ने बहुत सपोर्ट किया। सपना क्या मन में, काहे की तैयारी कर? ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है इंडिया के लिए, मतलब प्रैक्टिस हार्ड करना। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में अन्ना विश्वविद्यालय के धनुष सुरेश ने 2 मिनट 20.17 सेकंड के साथ सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन अपने प्रदर्शन से बहुत खुश नहीं थे। It was a bit difficult to in this hot temperature, but there it is. You can't control everything. You can only control what's in your hands. But absolutely delighted with the time. 2 जुड़वा बहनें ज्योति और आरती पाटिल दोनों एक ही पूल में, दोनों नंबर 1 और नंबर 2। ये चमत्कार था 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में।
स्वर्ण पदक नीले सूट में ज्योति पाटिल को और रजत पदक काले सूट में आरती पाटिल को। और दोनों से एक साथ बातचीत आकाशवाणी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि फर्स्ट गोल्ड सिल्वर मिलेगा, बट जो जितना भी हार्ड वर्क किया है वो अब आज पेड ऑफ हो गया। ये ज्योति थी जिनको मिला है स्वर्ण पदक और उनकी बहन आरती रजत पदक इन्हें मिला। यस सर, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया था बिकॉज लास्ट टाइम मेरा ब्रॉन्ज था, इस टाइम सिल्वर आया है, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच खेलो इंडिया। ये सिबलिंग राइवलरी एक चीज हमने सुनी है, आप दोनों के बीच में भी कैसी राइवलरी होती है? प्रैक्टिस में तो आगे पीछे रहता ही है, बट प्रैक्टिस में हम लोग एज ए सिस्टर एज ए प्रैक्टिस नहीं करते। लाइक कॉम्पिटिटर इधर कैसे रहते वैसे ही प्रैक्टिस में हम लोग भी वैसे ही रहते हैं। आपके फादर की बहुत बड़ी भूमिका है सुना है इसमें। मेरे फादर हमें, मेरे भाई को भी, मतलब हम तीनों हैं, तो मेरे पापा 23 ईयर्स से हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो भी ग्रेट स्विमर है, सो वो पुलिस में काम करते हैं। सो उनका जो हार्डवर्क है, मेरे मम्मी का हार्डवर्क है। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है, दो बहनों विलियम्स बहनों के फादर की बायोपिक, जिसमें ऑस्कर्स भी मिले हैं। आपके मन में कोई सपना है? लास्ट खेलो इंडिया में हमें सेम ऑल इवेंट्स में गोल्ड सिल्वर था। सो हमें ऐसा नाम दिया गया है कि स्विमिंग दंगल्स, क्योंकि दंगल की जैसी स्टोरी है वैसे हमारी भी है। हम दोनों एक मतलब कॉम्पीट करते। फिर मेरे पापा भी एज अ मूवी जैसे कोचिंग कर रहे हैं। सो वी आर नोन एज स्विमिंग दंगल। तो आप लोग भी गाना गाती हैं बापू सेहत के लिए? समटाइम्स होता है, मतलब हम तो कभी कभी रो भी लेते हैं। और यकीनन उनके पिता उनसे भी ज्यादा खुश होंगे अपनी लाडलियों के इस कारनामे से। लड़कियों के 400 मीटर फ्री स्टाइल में मद्रास विश्वविद्यालय की ए वर्षा ने 4 मिनट 59.63 सेकंड के साथ पूल को 8 बार पार किया और स्वर्ण पदक पाया। 200 मीटर मेडले में अपने घरेलू पूल में हरफनमौला प्रदर्शन के साथ बाजी मारी मेजबान जैन यूनिवर्सिटी के शिवा श्रीधर ने। जैन विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल के पास से मैं अनुपम पाठक। Do we have any promising talent in shooting, where India has always excelled? Sudhir Rajoria was at the Sai shooting range to witness the young crop of sharpshooters. निशानेबाजी के क्षेत्र में युवा सितारों की खोज में आज हम फिर जा पहुंचे साई शूटिंग रेंज पर, जहां आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल खेला गया। 8 महिला निशानेबाजों के बीच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की इशनीत औलख ने स्वर्ण पदक जीता। हमारी रेंज चंडीगढ़ में, मैं पटियाला से हूँ बेसिकली, सो अप डाउन करती हूँ डेली 80 किलोमीटर्स एंड 4 आवर्स हमारे ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस है इस चीज़ की। 25 मीटर्स और 10 मीटर्स 2 इवेंट है मेरे में। रजत पदक दिल्ली की वर्षा सिंह और कांस्य पदक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की अर्शदीप कौर के नाम रहा। रजत पदक जीतने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की वर्षा सिंह को ये मलाल था कि काश अगर उन्हें चोट न लगती तो उनका रिजल्ट और बेहतर हो सकता था। जिस हैंड से मैं शूट करती हूँ, मेरे उसी हैंड में इंजरी हो गई वाइल्ड मैच। मेरे को फाइनल्स के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मैं खेलूँ कि नहीं खेलूँ। मैं अपनी इंजरी खराब नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद फिर फाइनल्स में मैंने सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। फाइनल्स में हर किसी को आने का ऑप्शन नहीं मिलता, मुझे मिला है तो आई विल प्ले। अपना 100% दिया एंड रेस्ट द रिजल्ट इज। 25 मीटर पिस्टल फाइनल में पंजाब की खिलाड़ियों के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां उसकी 4 खिलाड़ी मौजूद थीं और 2 खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब भी रहीं। इशनीत कौर के स्वर्ण पदक जीतने के बाद पदक मंच पर पहुंची पंजाब की अर्शदीप कौर। कांस्य पदक जीतने पर उनका कहना था, और अच्छा कर सकती थी, बट एज यू नो कंपटीशन में जो प्लेयर्स होते हैं वो हर प्लेयर सेम लेवल का होता है। डिपेंड्स कि वो अपनी टेक्निक और अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। जो भी प्लेयर अपने आप को अच्छे से हैंडल कर पाता है वो टाइम टू टाइम अपने स्कोर को लेकर आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं की ही 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, रजत पदक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और कांस्य पदक सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के नाम रहा। कल बेंगलुरु की साई शूटिंग रेंज पर महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल के विजेताओं का फैसला होगा। It is pretty warm these days in Bengaluru, but our roving reporter SP Venkatram witnessed multiple events at the Jain Global University campus. Over to him for more on what happened today in weightlifting, volleyball and Malkham. On the second day of weightlifting event, Sneha of Maharshi Dayanand University, Rohtak, grabbed gold with a total lift of 169 kg
pipping her nearest competitor Moti Jani of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar. Gold medalist Sneha of Maharshi Dayanand University. मेरे कोच को है ये मेरे प्रतिदिन मेहनत करवाते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी हर काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ हर कंपटीशन में जाते हैं, उनका हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. In the 73 kg weightlifting event of men's category, Koteshwar Rao of Krishna University, Machilipatnam totaled a lift of 278 kgs to grab gold medal in a closely fought contest. Koteshwar Rao speaking to All India Radio. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल मिलेगा, बहुत एंजॉय करेगा. दिस मेडल मिले को बहुत मेहनत करेगा, अच्छा प्रैक्टिस, सो आई एम सो हैप्पी. The proceedings in Malkham competition was almost dominated by Mumbai University, who clean swept team and individual events of men and women. Ganesh Shinde, coach of University of Mumbai, was all praise for his team's performance. अभी 2 दिन के कंपटीशन में हम फर्स्ट रैंक पे बॉयज़ और टीम चैम्पियनशिप में, मेंस एंड वुमेन्स में दोनों साइड गोल्ड है. तो अभी फिलहाल के लिए रैंकिंग हमारा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस हमारा बहुत अच्छा चलता है. Reigning world champion of Malkham, Deepak Shinde, the double gold medalist in the team as well as individual event. मैं फर्स्ट वर्ल्ड मलखम चैम्पियन विनर हूँ. आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं ओपन कैटेगरी में खेला, जिसमें मैं कहने को इंटरेस्टिंग है कि राउंड 1 में मैं पीछे था बहुत ही, बट आज राउंड 2 जब हमारा हुआ तो मैं मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देखे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. Meanwhile, volleyball competition witnessed intense battles between fancied teams. In the men's section, SRM University Chennai edged out Mahatma Gandhi University Kottayam to reach finals. Winning captain S. Santosh of SRM University Chennai. Mahatma Gandhi team is a very good team. Before we have planned how to beat them. We already beat All India by 3 sets. Any team I'm going to play, but our performance will be good. I'm very proud to say, and men and women are going to finals. Very happy. The other semi-final match between University of Calicut and Karnataka University will decide the finalist who will take on SRM University tomorrow. Earlier in the day, in the women's section, SRM University Chennai defeated Adamas University West Bengal to reach finals. In the second semi-final match, Bardiyar University of Coimbatore upset Mahatma Gandhi University Kottayam to make it to finals of volleyball women's competition, making it an all Tamil Nadu team's affair. All India Radio will broadcast a 30-minute daily highlights program on Khelo India University Games 2021 held in Bengaluru from 24th April to 3rd May 2022 from 10 p.m. on National Hookup. Program will be broadcast by all AIR Capital stations and FM Rainbow Network. Do tune in to All India Radio every night at 10 p.m. Khelo India University Games 2021 highlights. Let's play the game. Game on with the whistle blows on the mic. In hockey, preliminary pool events were on at the Field Marshal KM Cariappa Stadium. Shahid Anwar has more. आज भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में ड्रैग, पास, ड्रिबल, पुश, हिट, स्कूप और दंदनाते गोल के जबरदस्त खेल ने सभी का मन मोह लिया. पुरुष वर्ग में आज कुल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें मेंस ग्रुप में सावित्री फुले यूनिवर्सिटी पुणे ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया. वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा को बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर्नाटक ने एक तरफा मुकाबले में 6-1 से शिकस्त दी. संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा और बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के बीच मुकाबला 3-3 गोल से बराबरी पर रहा. आज के चौथे मुकाबले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को एक तरफा मुकाबले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 4-1 से हराया. कप्तान रमनदीप सिंह खुशी से बताते हैं, बहुत अच्छा खेले हमारे लड़के. यही बोलेंगे कि सारे लड़कों ने एक साथ होकर जोर लगाया और सभी लड़कों ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग जीते. लेफ्ट ऑफ राजेंद्र सिंह ने 2 गोल दागे. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आगे हम फाइनल तक जाना चाहते हैं. हमारी टीम बहुत अच्छी है. कोच जगदेव सिंह चहल टीम के प्रदर्शन से खुश थे. बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारी टीम ने, सभी एक दूसरे के साथ सपोर्टेड करके खेल ले, कोऑर्डिनेशन के साथ खेल ले, तो उसका हमको बेस्ट रिजल्ट मिला. आज के दूसरे हाफ में महिला हॉकी खिलाड़ी एक्शन में थी. आज के पहले मैच में सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे को रांची यूनिवर्सिटी ने 3-2 से हराया. रांची यूनिवर्सिटी के कोच
और कप्तान से हमारी बातें होती हैं। मेरा नाम सिमता मीन्स है, मैं यूनिवर्सिटी की कैप्टन हूँ। आज तो हमारा पहला मैच था, इसलिए जैसे खेलना चाहिए वैसे नहीं खेल पाए। अगला मैच में अच्छा करेंगे, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आदम और है, रांची यूनिवर्सिटी कोच। पहला मैच बहुत प्रेशर मैच होता है और हम निकल गए, ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगला मैच के लिए। रिपोर्ट के साथ मैं शाहिद अनवर। In the popular game football, Kerala University took on University of Calcutta this morning, followed by 3 other matches. Nitish Arora has all the details. The football matches were held at 2 different venues simultaneously. In the first match of the day, played at JN Global University campus between Kerala University and University of Calcutta, Kerala defeated Calcutta by 3-1. At the JGM, the sports school, MG University Kottayam defeated Sant Baba Bhag Singh University by 2-0. Arjun, the double goal scorer for MG University Kottayam, spoke to All India Radio. The match is good. My team members have all played well and we organized it together and we win. We are trying to next match to win. Coach of the winning team had this to add. It's a very toughest competition. They are the All India University runner-up team and we were the second runner-up. It was a very tough match for us. So in the physical aspects as well as the tactical and technical aspects. The second match at this venue was All Punjab affair, in which Punjab University Chandigarh defeated Punjabi University of Patiala by 2-0. Coach Bhupinder Singh of Punjab University चंडीगढ़। हमारी टीम आज बहुत स्पिरिट से फुटबॉल खेली। स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, प्लानिंग सब टीमें बनाती हैं, पर जो हमारी टीम ने एक जोश दिखाया, जो टीम को स्पिरिट की जरूरत होती है, आज उस स्पिरिट से खेली और टीम ने जीत ली अच्छी। And in the final match of football for today, Calicut University defeated the Adams University Calcutta by 1-0. This is Nitish Arora signing off from the football turf. Pool matches were on in basketball. Traditional favorites did well today. Here's Shahid Anwar with more from the basketball arena. अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल मैचों की मेजबानी कर चुका श्री कंठीरवा स्टेडियम बेंगलुरु के 2 कोर्ट पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के तहत युवा पूरे जोश के साथ ड्रिबल, पास, शॉट या 3 पॉइंटर बास्केट कर रोमांच आज दिन भर भरते रहे। 23 अप्रैल से बास्केटबॉल के मुकाबले प्रगति पर हैं। मेन वुमेन की कुल 16 टीमों के 192 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोर्ट 1 पर खेले गए वुमेन्स के पहले मैच में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला ने गुरु नानक यूनिवर्सिटी को कड़े मुकाबले में 96-79 पॉइंट से हराया। कप्तान कहती हैं, ओलिविया, कैसा परफॉर्मेंस रहा? नॉट बैड। कोच ने कहा, मेरा नाम तो सन्नी है। हम लोग अच्छा गेम खेला। पहले इनिशियल फर्स्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा मिस्टेक हुआ, उसके बाद में प्लेयर्स सब लोग अच्छा गेम खेला। अन्य मुकाबलों में पुरुषों की यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। इसने मुंबई को 54 के मुकाबले 100 पॉइंट से मात दी। टीम के कोच और कप्तान कहते हैं, Yeah, I'm Surya from University of Madras and tomorrow we are playing against Jain University. We hope we will give our best and we will win the championship. I am James from Madras University, basketball coach. I am working in Sports Development Authority of Tamil Nadu. We played 2 matches. 2 days before we lost first match against Kurukshetra, 3 points. Today we played against Mumbai. We won the match today. Tomorrow is the last league match against Jain University. Tomorrow is an important game, the do-or-die game, is a must-win game. बास्केटबॉल के कंपटीशन मैनेजर और इंटरनेशनल रेफरी इमरान अली बेग कहते हैं, पहला लीग मैच हमने खत्म कर दिया 23 और 24 को। सेकेंड लीग गेम्स हो रहे हैं आज और थर्ड लीग गेम्स कल होंगे एंड 27 को आपको सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हो जाएगा उसमें। और अभी रिसेंटली कंक्लूडेड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आके विनर्स रहा है मेन लेवल में, और वुमेन लेवल में आप यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ही है। दोनों में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, मेन और वुमेन। सो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अच्छा है, पंजाब है, जैन यूनिवर्सिटी है, LNP है, तो थोड़े टीम्स हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम्स। अंडर 26 का चैंपियनशिप है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेन है ये, तो इनमें जोश बहुत भरा हुआ है क्योंकि 2 साल पैंडेमिक के बाद ये लोग आके खेल रहे हैं। शायद 2 साल से इन्होंने कुछ अपने कॉलेज लेवल तक भी खेला नहीं है। अभी तो इन्होंने यूनिवर्सिटी आके डायरेक्ट खेलो इंडिया खेल रहे हैं 2 साल। और सारे टीम में मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सारे टीम्स में बहुत जोश है और आई थिंक दिस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी अ गुड कॉम्पिटिशन। Now on to the scene at the Jain Sports School badminton venue. Here's Nitish Arora. The quarterfinals round of badminton in men's category started today. Match between MD University Rohtak and Jain University Bangalore. In the first match,
of the tie, M. Raghu of the host university took on Ravi of MD University Rohtak and gave some anxious moments to everyone when he lost the very first game. He eventually went on to win the match by 2-1. Raghu, so how was today's match and you lost the first game? Pretty easily, I lost 21-8. I couldn't get good length and he was playing good at the net. And then I had to change my strategy and, put pressure in the front forecourt of the area. And then I got the openings and then he lost it continuously from there. Ravi from MD University Rohtak blamed the defeat to a niggling injury. मेरे को अभी लास्ट वीक मैं इंडिया की ट्रायल देने गया था तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। ट्रायल के दौरान मेरे को इंजरी होगी या हैमस्ट्रिंग और पूरे इसमें तो मैं अभी पूरी तरह फिट नहीं हूँ, मैं खेल नहीं पा रहा था अच्छी तरह। The tie was very exciting. MD University Rohtak stuck back, winning the second match. Jain University won their third match, taking the tie score to 2-1, and this was again followed by MD University Rohtak winning the fourth match, taking the tie to 2-2. The doubles match was a cliffhanger till the very last point. So all eyes are on the court number 1 and it's a good rally and they win it. The Jain University Bangalore wins this quarterfinal match 21-18, 21-16, the doubles match to clinch the quarterfinal against MD University Rohtak. So I have with me the winners of the doubles match. Congratulations, Rohit and Suhas. What was the pressure like? A bit nervous from starting, but after winning the first game, we got ourselves more confident. We knew we'll win. In the other quarterfinal matches, Punjabi University Patiala defeated Devi Ahilya University Indore by 3-0, whereas SRM Institute of Science and Technology Chennai Tamil Nadu defeated Dibrugarh University Assam by a margin of 3-0. At the time of filing this report, Punjab University Chandigarh lost the doubles match to Savitribai Phule University Pune. Tomorrow, Punjabi University Patiala will take on SRM Institute of Science and Technology Chennai Tamil Nadu in the first semi-finals, whereas Savitribai Phule University Pune will take on Jain University Bangalore for the second semi-finals in men's category of Badminton Championship. That's all from the Badminton Arena. This is Nitish Arora signing off for All India Radio. With a ringside view of the hits and misses, here's Anupam Pathak on which boxers did well today. देश में मुक्केबाजी एक लोकप्रिय खेल हो चला है, भला क्यों न हो। रोल मॉडल के रूप में कई सितारे जो हैं हमारे पास। आज सुबह 11 बजे से रिंग में जो दनादन मुक्के बरसने शुरू हुए तो देर रात तक चलते ही रहे, बल्कि इस प्रसारण के शुरू होने के समय तक चल ही रहे थे। पुरुष वर्ग के 13 भार वर्गों में क्वार्टर फाइनल स्तर की कुल 52 बाउट्स हुई आज। हमारी रुचि बाउट नंबर 12 में भी थी। इसमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के राजपिंदर सिंह लाल किनारे पर करण गिल के विरुद्ध थे। NIS पटियाला में राष्ट्रीय कैंप के सदस्य यानी राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज जो अंतर्राष्ट्रीय दरवाजा खटखटाने को बस तैयार बैठे हैं, बहुत आसानी के साथ उन्होंने परास्त कर दिया करण गिल को। नेशनल तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटियाँ और अच्छे बॉक्सर आ रखे हैं हरियाणा से भी, तो उसके लिए अभी फाइट थी मेरी और सेमीफाइनल फाइट है अभी परसों। जो कोच साहब है वो मोटिवेट करते रहते हैं हमारे को और अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और इसलिए हम सीनियर नेशनल फाइनल तक पहुँचते हैं। आगे ट्रायल होंगे एशिया कॉमनवेल्थ में, उसमें अपनी बेस्ट देंगे, अब देखो क्या करता है। उनके कोच बलजिंदर सिंह अपने 5 शिष्यों के साथ यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तो वो बात कर रहे हैं राजपिंदर की। 8वीं क्लास में मेरे पास आया था, तब से लेके कम से कम 10 बार नेशनल मेडल है, अलग अलग स्कूल नेशनल, सीनियर नेशनल, जूनियर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया। तो अभी भी जो सीनियर इंडिया कैंप में चल रहा है, सीनियर इंडिया कैंप NS पटियाला में इंडिया टीम में अभी भी। तो मैं इच्छा करता हूँ कि ये इंडिया टीम में से आगे बढ़ता रहे और ओलंपिक, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ के लिए ये भारत की प्रतिनिधित्व करे। बॉक्सिंग में अगर आपकी रुचि है तो सुमित सांगवान का नाम तो सुना ही होगा। ओलंपिक खेल चुके हैं और उनके छोटे भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संचित सांगवान के मन में भी वही सपना है। आज बहुत तेज तर्रार फाइट में जसवंत को परास्त किया उन्होंने, अपनी बाउट की रणनीति बताते हुए। सर जब थोड़ी बाउट क्लोज हो जाती है तो अटैकिंग बढ़ानी पड़ती है, स्कोरिंग बढ़ानी पड़ती है सर, इसलिए वो जीतने का। इसलिए कुछ बॉक्सरों को लगता है कि हम कम मार के भी जीत रहे हैं तो उनको वो इतने अपना एफर्ट नहीं लगाते। जब हमें लगता है कि बाउट क्लोज जा रही है, इसको एक तरफा करना पड़ेगा, तो और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है सर। बड़े भाई के इतना बड़ा बॉक्सर होने का क्या फायदा मिलता है? बहुत फायदा होता है सर। एक सीनियर बॉक्सर है सर घर पे, और एक सीनियर बॉक्सर से वो उससे बड़ी बात होगी सर, एक भाई है सर, वो जो हम बात कोच से नहीं पूछ सकते सर, एक भाई हमें बता देता है छोटी छोटी बारीकी बात। हम कोच से डरते हैं सर, ये हो जाएगा सर, बड़ा भाई होता तो भाई हाँ चल ये मार वो मार मजा भी आता सर करने में, अच्छा लगता है। कल महिलाओं के सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे। सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए बॉक्सिंग एरिना से मैं अनुपम पाठक।
In tennis, team events were held today, and here's Nitish Arora with more. Tennis matches also started at the JGM, the sports school, today. The competition manager Anton D'Souza gave us an overview of the discipline. We have 16 men's team and 16 women's teams. This 16 men's team have been divided into 4 different groups, and each groups have 4 teams who will be playing round robin matches, same as for the men's and women's. The top team of each group will qualify for the semi-final, and then the knockout round starts for the finals. So each university will be playing 2 singles and 1 doubles. Team has to win at least 2 matches to win the tie. So they are fighting for the top 1 position of the group so that they can play the semi-finals. And we have a medal ceremony for gold, silver and bronze. So we will also be having 3rd place matches. We have total 7 courts, and 6 courts have been used for matches, and 1 court has been given for the practice. We will be having 3 matches in the daytime, and then after the break we will be having the other tie from 3 o'clock till the late night matches in the floodlights. By the time of filing this report, the results had started pouring in. In men's category, Group C, SRM University overcame Kalinga Institute of Industrial Technology by 2 matches to 1. In Group B, Gujarat University defeated Jain University by 3 matches to none. And in Group A, Osmania University defeated Punjab University Patiala by 2 games to 1. And in another tie, Barkatullah University defeated Jadavpur University by a margin of 3 matches to none. The tennis matches will be played from 25th of April to the 1st of May. Lots of action is in store for tennis buffs here. This is Nitish Arora signing off from the event venue for today. Catch you tomorrow with some more action. Now let's take a look at the latest medals tally. Hosts Jain University Karnataka leads with 4 gold medals and 1 bronze medal. Shivaji University is second with 3 gold, 1 silver and 1 bronze, followed by University of Mumbai with 3 gold medals, and Chaudhary Charan Singh University Meerut in 4th spot with 2 gold medals. Early days yet, Maharishi Dayanand University with 2 gold medals and Savitribai Phule Pune University with 1 gold medal are close behind. 40 universities have won at least 1 medal. Technical assistants Wilson Francis, assistants in production Shahid Anwar, script and narration by V. Shivakumar, and produced by Mahendra Singh Lalas. Khelo India University Games 2021 Bengaluru. You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru. अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।